welcome all for the Bombay Art Society's first monsoon show. See, Bombay Art Society always been at the forefront to promote visual art and artists. We have been doing annual art exhibition for many years, almost from the 1888, the year society founded 133 years ago. Now, having said that, this annual show has been, been done from 133 years, but there are many exhibitions and there are many artists, well-known, renowned, and some of our master artists who has never been invited to participate at the Bombay Art Society's annual art exhibition. तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का हमारा जो मानसून शो का एम है, ये तो यही है कि जो हमारे वेल नोन आर्टिस्ट है, एस्टेब्लिश आर्टिस्ट है, मास्टर आर्टिस्ट है, ये तो कोई एनुअल आर्ट एग्जीबिशन में दे कैन नॉट गो एंड पार्टिसिपेट. सो दिस हैज बीन आवर एफर्ट टू प्रमोट, रादर टू फेलिसिटेट एंड ऑनर द सीनियर आर्टिस्ट, एस्टेब्लिश आर्टिस्ट फ्रॉम द महाराष्ट्र एंड Mumbai's world, to welcome them and to honor them by putting this exhibition, Monsoon Show 2022. And here there are almost 63 invited artists who have been putting 120 artworks through all these 3 art galleries. Now, when we meet at the Bombay Art Society's committee meeting, this has been at the forefront that there has been some exhibition. Rather, I would like to take here the names. Our Joint Secretary Ajinkya Chaulkar suggested that there has to be some exhibition to promote our master artists, senior artists, and this idea was supported by Vikrant Manjrekar, who has been the exhibition in charge of this monsoon show.
So this show was put up just to bring some kind of artworks and to honor the senior artists, master artists who has been working in the field of visual art for many years. And here we have invited many senior artists whom, without taking much time, I would like to invite Sri Suhas Baudkar sir, who has been, you know, the ex-chairman of Lalit Kala Academy, and he himself is a senior artist and art writer. Then Vishwanath Sabre sir, who has been, you know, the director of art, Maharashtra State. Then here we have the Uttam Pacharne, who is the ex-chairman of Lalit Kala Academy of India, New Delhi. And we have Vasudev Kamath sir, who has been renowned artist. I am a fan of his work, and he has been, you know, the president of Sanskar Bharati, one of the prime cultural institution of India. We have our chairman Vichare sir, and then our committee member Sri Chandresh Yadav and Vikrant, who has been looking after this show. So I would like to introduce here Sri Baudkar sir, who would like to talk about Bombay Art Society and this monsoon show. Thank you. First of all, I congratulate Bombay Art Society for organizing this show. It's a unique show happening for the first time, which is related to the monsoon. हमारे यहाँ इतने सारे कलाकार हुए हैं, लेकिन सबका काम बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के एग्जीबिशन में लगता है ऐसे नहीं, कुछ भेजते नहीं है सीनियर लोग, तो उनका भी काम लगे, ये भावना इसके पीछे है। और मैं अभिनंदन करता हूँ कि इस प्रकार का प्रयोग आप कर रहे हैं। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का अगर इतिहास देखा जाए तो 133 साल पूरे हो गए, 133 years, and Bombay Art Society has entered 134th year. Bombay Art Society has been exhibiting consistently, even during the Second World War time, First World War time. Bombay Art Society has not only exhibited, but they have contributed to the war fund also. One can see a span of, or the galaxy of artists from all over India, right from Kashmir to Kanyakumari, who have exhibited in this exhibition. I have written one book, Part 1, History and Voyage, Bombay Art Society. Part 2 will cover that, and I think a catalogue of this exhibition, if Bombay Art Society decides to do, that will be another great contribution. Apart from this, I wish that Bombay Art Society should come up, as they have this beautiful building at Bandra in the heart of the city, many more activities which will not only promote the youngsters, but Bombay Art Society should also try to promote, also try to encourage the artists from the society who don't have regular एजुकेशन, और ऐसे लोगों को भी कला के प्रति अच्छी भावना होती है, कला समझने की वो कोशिश करते हैं, वो खुद कला निर्माण करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी कुछ प्रयास करे, ये बहुत ही बेहतर होगा, जिससे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की तरफ जनता का, हमारे समाज का ध्यान जाएगा और समाज में भी कला की भावना उजागर होगी। इसके साथ मैं सभी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के मेंबर्स का, विक्रांत मांजरेकर जिसने एक एग्जीबिशन क्यूरेट किया है, उनका अभिनंदन करता हूं। और इस प्रकार की एक्टिविटियां अब कोरोना की महामारी के बाद में आप शुरू कर रहे हैं, इसे और ज़ोर शोर से चलाएं और बहुत लोगों को इसका फ़ायदा मिले, ये मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? मॉनसून शो पहली बार होने जा रहा है और इतने सारे लोग। सबसे प्रथम बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सभी जो मेंबर्स और सभी पदाधिकारी हैं, तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे सर ने कहा कि बॉम्बे आर्ट सोसाइटी एक अपना, उनका एक इतिहास है, इंडियन आर्ट में उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है।
जो भी एक्टिविटी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में होती है तो उसका रिफ्लेक्शन पूरे इंडिया के आर्ट वर्ल्ड में आ जाता है। तो ये जो एग्जीबिशंस जब फर्स्ट मानसून शो हुआ है उसकी वजह से सभी सीनियर्स आर्टिस्ट का काम एक साथ जो देखने को मिला है तो सबसे अच्छा काम ये हुआ है। सब इससे बाद इस शो के द्वारा जो कॉमन पीपल को भी एक बहुत सारे आर्टिस्ट का काम, जैसे सर ने कहा अभी कि कोरोना के बाद पूरा आर्ट वर्ल्ड थोड़ा रुक गया था, पूरे आर्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सब बंद हो गए थे, लेकिन अभी वो धीरे धीरे ओपन हो रहा है। तो सभी लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो बात इम्पॉर्टेंट है कि सोसाइटी का एक अपना कंट्रीब्यूशन होता है कि सोसाइटी के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम तो आर्ट के लिए काम करते हैं, आर्ट का प्रमोशंस के लिए काम करते हैं, आर्टिस्ट के लिए काम करते हैं, लेकिन कॉमन पीपल की तरफ हमारा आर्ट अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए तो उसके लिए भी थोड़ा हम लोग कुछ प्लान कर सकते हैं। हम बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के साथ मिलके कुछ प्लान कर सकते हैं, कुछ आर्ट इंस्टीट्यूट के साथ मिलके हम लोग कुछ प्लान कर सकते हैं कि एक विजुअल आर्ट की लैंग्वेज है कॉमन पीपल तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। होता क्या है कि बहुत बार आर्ट बहुत एक्सपेंसिव होती है तो कॉमन पीपल वो परचेस नहीं कर पाता था। अगर कुछ इस टाइप के अगर प्लान हम लोग करते हैं कि एक अफोर्डेबल आर्ट, कि कॉमन पीपल भी आर्ट अफोर्ड कर सकता है, इस टाइप के कुछ शोज या सोसाइटी के द्वारा कुछ होता है तो उसका भी अच्छा एक रिफ्लेक्शन सोसाइटी में जाएगा। मैं सभी पदाधिकारियों को थोड़ा मेरे का अनुरोध ये भी रहेगा कि एक हम जैसे कि एक एनुअल आर्ट शो होता है उसके बाद हम अपनी जो स्पेस है, स्पेस में कुछ रेसिडेंसी अगर प्रोग्राम अगर हम कुछ प्लान करते हैं, कुछ शुरू करते हैं, तो एक अपकमिंग आर्टिस्ट है जो बॉम्बे में आके उनको कुछ काम करना है, उनके लिए स्पेस का प्रॉब्लम होता है, अगर कुछ इस टाइप का अगर हम कुछ रेसिडेंसी शुरू करते हैं तो वो भी आर्ट के लिए और जो आने वाले जनरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फिर से मैं सभी सोसाइटी के जो ऑर्गेनाइजर्स है, सभी पदाधिकारी, सब मेंबर्स हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस शो के तरफ। धन्यवाद। सर, आप क्या कहना चाहेंगे मॉनसून शो के बारे में और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने जो इनिशिएटिव लिया है कोविड एरा के बाद, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में मैं 23 साल रहा, एक मेंबर के नाते, चेयरमैन के नाते, एडवाइजरी के नाते। और जो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी केवल जहांगीर आर्ट गैलरी में चलती थी, उसका यहाँ बांद्रा तक आने का जो प्रवास है उसका मैं साक्षीदार रहा। आज यहाँ जितने भी सीनियर लोग बैठे हैं, मोस्ट ऑफ देम विविध पदों के ऊपर रह के उन्होंने इस संस्था को सेवा अपनी दे दी है, लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट दिया है। काफ़ी भावना जुड़ी है इसके वजह से। इस संस्था में मैं जब आता हूँ तो मेरे अपना घर जैसे लगता है। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष, संस्कार भारती के अध्यक्ष, देश के माने चित्रकार वसुदेव कामत जी और राजेंद्र पाटिल जी, सुहास बोलकर जी, या प्रसिद्ध चित्रकार चंद्रजीत यादव और आप सभी मेरे गुरु MP पवार, रामजी शर्मा और इस कतार में बैठे मेरे क्लासमेट और ललित कला एकेडमी में जिनका अलग अंगों से सहभाग रहता है, कोई जूरी में आते हैं, कोई मार्गदर्शन में आते हैं, ऐसे सभी लोगों को यहाँ देख के बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने जो काम किया है उसका देश भर में कितना प्रभाव है ये जनमानस में है। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी एक ऐसी संगठन है जिसका नाम दुनिया में है। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी एक ऐसी संस्था है, ललित कला एकेडमी के पहले आर्ट का अगर प्रमोशन करना है तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का लोग सर्टिफिकेट दिखाते थे, आई ऑनर ऑफ द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी। ये कार्य अमृता शेरगिल के वहाँ से चला है, उसके भी पहले चला है। देश विदेश के कलाकार यहाँ से इंस्पायर होते थे, पाकिस्तान के भी कुछ कलाकार थे। इतना बड़ा इतिहास जो संस्था का है, देश के कला क्षेत्र में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का अपना एक अस्तित्व है, वो हुनर है, वो एक स्टाइल है। जे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ने के बाद एक तंत्र शुद्ध कला की निर्मिति, प्रमाणबद्धता, जो पाश्चात्य शैली के साथ जो एजुकेशन यहाँ आया, उसका अगर पर्सपेक्शन है, उसका अगर निर्माण है, वो देखने की अगर जगह होती है तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के एग्जीबिशंस होते हैं। आज भी ये मापदंड माना जाता है कि बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में हमने नया क्या देखा,
बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में कलाकारों ने नया क्या दिखाया है। आज इस उत्सुकता से और इसी आस्था से मैं भी मेरे चेयरमैन के नाते, प्रोटेम चेयरमैन के नाते ललित कला के होते हुए भी 2 वर्ष यहाँ दिए हैं। ये उत्सुकता है कि मेरे काम के साथ दूसरे लोगों का काम मुझे देखने को मिले, मुझे प्रेरणा मिले। इस पद्धति में ज़्यादातर विद्वज्जन जो है वो प्रवास नहीं करते, उसका कारण कुछ और अलग होगा, लेकिन प्रवास नहीं करते इसलिए विचार मंथन नहीं हुआ, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो इसी कारण विद्वज्जन एकत्रित होते थे और उस चातुर्मास में विचारों का आदान प्रदान होता था। ये बहुत पुरानी परंपरा है। तो कला क्षेत्र में भी जब हम पढ़ रहे थे तब से जहांगीर आर्ट गैलरी में या और कहीं मानसून शो होते हैं तो नवोदित कलाकारों का वर्क, उनका काम प्रदर्शित किया जाता था। लेकिन आज बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने जो प्रतिथाशाली और प्रस्थापित कलाकार है, मास्टर आर्टिस्ट है, उनके कलाकारों का यहाँ प्रदर्शन करने से अनेक नवोदित कलाकारों के लिए एक दृश्य मापन का आदान प्रदान कला क्षेत्र में जो चलता है वो अनुभव करने को मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के विद्यमान अध्यक्ष, कमेटी मेंबर्स, विक्रांत और सभी जो उनके सहकारी हैं, उन्होंने ये यशस्विता का जो कदम रखा है उनके लिए मैं मन से उनका अभिनंदन करता हूं। और ऐसे नए नए प्रयोग होते रहे, क्योंकि एनुअल एग्जीबिशन तो एक अलग आकर्षण होता है, लेकिन उसके अलावा भी इस प्रकार का प्रदर्शन, फिर विचारों का आदान प्रदान ये होता रहे तो कला क्षेत्र में जीवन में कोई भी कठिनाई आए, जैसे कोरोना की कठिनाई के बारे में बात करते हैं, लेकिन ऐसे समय भी कलाकार का हाथ रुका नहीं, उसका नवनिर्माण, उसकी क्रिएटिविटी, रचना कृति चलती रही। तो ये एक जीवंत उदाहरण है, सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही रीच बढ़ गई, क्या कहना चाहिए सर? क्या वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें आर्ट की तो क्या क्या सिनेरियो है और क्या थॉट प्रोसेस है सर ये सारे फेस्टिवल के? अच्छा, ऐसा है कि जो हमारी आर्ट एग्जीबिशंस होती है, नॉर्मली आर्ट एग्जीबिशंस तो ऐसे टाइम पे होती है जहाँ पे ढेर सारी क्राउड आए हैं गैलरी में। तो जो भी आर्ट गैलरीज है ऑल ओवर इंडिया और मैं तो कहूँगा ऑल ओवर वर्ल्ड, जब हमारे कोविड का जो पीक पे था, अभी कोविड के तो ढेर सारे पीक आ गए, पीक गए 2-3 बार आए, 2-3 बार गए, कभी लॉकडाउन खुला, कभी और लॉकडाउन हुआ। तो ये ऑन ऑफ जो शुरू हो रहा है, इसके बीच में जो भी हमें टाइम मिला है, हालांकि अभी जो फ़िलहाल है जो टाइम बड़ा मिला है, हमारा जो लास्ट कोविड का जो था वो ओमिक्रॉन के बाद मार्च से तो ऑलमोस्ट खुला है, और अभी तो ज़्यादातर हम देखा जाए तो ये चल रहा है कि गैलरीज और जहाँ क्राउड गैदरिंग होती है वो एक्टिविटी अभी फ्लरिश हो रही है। लेकिन ऐसा है कि आर्ट एग्जीबिशन नॉर्मली जो होती है, हमारा सीजन जो होता है आर्ट का सितंबर टू मार्च होता है। अभी फ़िलहाल जुलाई अगस्त चल रहा है, सितंबर चल रहा है, तो जुलाई अगस्त सितंबर में थोड़ा सा बिकॉज ऑफ मानसून सीज़न वी आर लिटिल बिट लो इन टर्म्स ऑफ एग्जीबिशंस, बट अभी खुल रहा है। अभी ऐसा कोई सीज़न नहीं बचा है, जब समर में एग्जीबिशन नहीं होते थे, समर में भी एग्जीबिशंस हो रहे हैं दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता में, और अभी भी एग्जीबिशंस हो रहे हैं। और हमारा जो ये बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का मानसून शो है, इसका पर्पज़ तो यही था कि बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का मानसून शो, हम तो हर बार बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का बड़ा शो लगाते हैं, एनुअल आर्ट एग्जीबिशन, जिसमें यंग और एमर्जिंग आर्टिस्ट आते हैं, बट ये हमारा एफर्ट था कि जो एस्टेब्लिश मास्टर आर्टिस्ट है उनको भी कहीं ना कहीं हमें सम्मान देना चाहिए। तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने ये पहले से सोचा था कि एक along with the annual art exhibitions which is for the young and emerging artists, we should have some kind of platform where we can honor senior artists, established artists, master artists who can come and exhibit here, but then you need to respect the master artists. तो ये हमारा जो मानसून शो है, पहली बात तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का इन्वाइटेड शो है, तो इसमें 63 आर्टिस्ट हमने इनवाइट किए हैं, जिन्होंने हर एक आर्टिस्ट ने 2 आर्ट वर्क भेजे, जिसमें स्कल्प्टर्स है,
आर्टिस्ट है, पेंटर है। तो एग्जीबिशन हमारा एक फर्स्ट एफर्ट है कि जो हम लोग बॉम्बे आर्ट सोसाइटी द्वारा एस्टैब्लिश और सीनियर और मास्टर आर्टिस्ट को एक सम्मान दे और उनको इनवाइट करें। और यहाँ पे जिस प्रकार का हमें प्रतिसाद मिला है, तो हम तो सोच रहे हैं कि दिस शो विल कंटिन्यू नाउ एवरी ईयर, और हर साल मानसून शो में हम लोग ऐसे ही प्रतिष्ठित एस्टैब्लिश और मास्टर आर्टिस्ट को अलग अलग तरीके से इनवाइट करते रहे, ताकि इनका काम आर्ट ऑडियंसेस जो हम लोग देखें। मानसून का जो कंसेप्ट है, मानसून तो ऐसा है कि द सीजन इज इटसेल्फ ब्यूटीफुल। मानसून हैज बीन remains one of the prime inspiration for the creative minds. Whether you take rainbow in the sky, or you can say the completely washed out roads reflecting in the night, and then if you say the streets with the street lights with some kind of reflection. So all this ambience inspire artistic minds, not only in the art world, not only in the visual art world, but every field. आप देख लीजिए कविताएं जो है, मानसून पे सबसे ज़्यादा कविताएं बनी है। तो मानसून जो है ऐसा ऋतु है जिससे हम लोग इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर होते हैं, और हर एक फील्ड इंस्पायर होता है। तो हमारा एफर्ट यही था कि मानसून में यही चित्रकार शिल्पकारों को बुलाए और अपनी कलाकृति यहाँ उनको कहे कि भाई प्रेजेंट करिए। तो दिस इज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड देन बॉम्बे आर्ट सोसाइटी वुड लाइक टू कंटिन्यू दिस मानसून शो एवरी ईयर। थैंक यू। हाँ, मैं प्रोफेसर नरेंद्र विचार्य, हमारे सोसाइटी का इन्होंने बनाया हुआ चेयरमैन। ये मानसून शो जो है, मानसून शो आज तक मैंने जेजेस जहांगीर आर्ट गैलरी के बारे में सुना था और कहीं सुना था, लेकिन दी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के उनके क्षेत्र में कभी मैंने सुना नहीं था। मैं भी सोसाइटी के साथ बहुत सालों से हूँ, और जब यह विचार हमारी मीटिंग में आया, हमारे मान्यवर सदस्यों ने जब ये विचार रखा, तभी एक यूनिक ऐसी आइडिया सबको लगी और हम सब लोग ने उनको मान्यता दी। दुनिया में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का जो नाम है, यानी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का एक सर्टिफिकेट मिला कि बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के फलाना फलाना एग्जीबिशन में मेरा चित्र या कलाकृति मेरी डिस्प्ले हो गई, इसका सर्टिफिकेट भी मिला, तो भी धन्यता मानने वाले बहुत कलाकार हैं। तो ऐसे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के उनके क्षेत्र में मानसून शो का ये जो पहला शो हो रहा है, और उसको मुझे ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे जो बड़े बड़े कलाकार हैं, इन सब कलाकारों ने इतना क्या कहते हैं उसको, हाँ, इंकरेजमेंट करने के लिए अपनी अपनी कलाकृतियाँ दे दी। हम लोग बहुत खुश हुए। यानी इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सब हमारे बड़े कलाकार सबको, मैं तो उनके सामने बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सब।